Assalamualaikum. Good morning, my dear students. How are you all? कैसे हैं सब? Very good. Yes, my dear students. आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं? Yes, social studies. And our topic will be for all to use. Unit number 2, citizenship, and lesson number 5, for all to use. Yes, my dear students, let me clear one thing, that you should all have your books in your hands. Let me show you books. Let me show you your social studies books. Page number 25. Unit number 2, lesson number 5. Page number 25. Let me show you books. Okay. My dear students, before going to start my lecture, I want to revise our previous lecture, previous information that we have learned until now. My dear students, we have learned about the earth of 8 planets in the solar system, and about the moon and satellite of the earth. The sun's light reflects off it. The weather changes day from day to day. Climate is usual weather a place has during a year. Pakistan is on the continent called Asia. It has many different landforms. It is our country. हम डिस्कस कर चुके हैं अर्थ के बारे में, अर्थ एंड 8 प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, देन मून के बारे में कि मून हैज नो इट्स ऑन लाइट, मून की अपनी लाइट नहीं होती. द सन लाइट्स रिफ्लेक्ट ऑफ इट, सन की रिफ्लेक्शन होती है, सन से लाइट लेते हैं. देन weather change day to day, and the climate is usual weather of a place as during a year. Pakistan is the continent Asia on the continent called Asia, and it has many different landforms. It is our country. Pakistan is our country. Yes, my dear students. Now today I will tell you about the citizenship. What is citizenship? Citizenship, my dear students, the community can be village, town or city. The people of country are its citizens. We are living in Pakistan. हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की कम्युनिटी है. तो हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग क्यों होते हैं? पाकिस्तानी होते हैं, and they are the citizens of Pakistan. जिस कंट्री में हम रहते हैं, हम उसी कंट्री के सिटीजन होते हैं. Okay? The people of a country are its citizen. People of a country, किसी भी मुल्क में रहने वाले लोग are called citizen. उस मुल्क के citizen कहलाते हैं. Okay? My dear student, your house is on a street. आपका घर एक गली में, स्ट्रीट में. The people who live near your house are your neighbors. आपके घर के नजदीक आपके साथ जो रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो आपके neighbors हैं. They are called your neighbors. They are called your neighbors. The people lives near your house are your neighbors. All the people living in one place form a community. बहुत से लोग जब एक प्लेस पे रहते हैं, उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं. बहुत से लोग जब एक प्लेस पे रहते हैं, जगह पे रहते हैं, उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं. The community can be a village, a town or a city. Community can be a village, town or city. City की भी हो सकती है, town भी और village भी. And the people of countries are its citizen. Country के जो people होते हैं, they are called citizen. वो उस मुल्क के citizens होते हैं. And we are Pakistani citizens because we are living in the country Pakistan. हम पाकिस्तान में रहते हैं. That's why we are the Pakistani citizen. हम पाकिस्तानी citizen हैं. My dear students, हम जिस community में रहते हैं, हमें वहाँ बहुत सी चीजें शेयर करनी होती हैं. हमें बाकी लोगों के साथ बहुत सी चीजें शेयर करनी होती हैं. For example, जिस घर में आप रहते हैं, that is your house, but street is not your own. जो गली है, जो स्ट्रीट है, वो आपकी अपनी नहीं है, but your house is yours.
आपका घर तो अपना है, बट स्ट्रीट इज नॉट. यू हैव टू शेयर द स्ट्रीट विद द अदर पीपल. आपको अपनी स्ट्रीट दूसरों के साथ भी शेयर करनी होती है, बिकॉज वो आपकी अपनी नहीं होती. एवरी कम्युनिटी हैज थिंग्स विच आर शेयर्ड बाय ऑल द पीपल. हर कम्युनिटी में चीजें होती हैं जो सबको शेयर करनी होती है. द हाउस इन विच यू लिव मे बी योर ऑन, बट द स्ट्रीट इज नॉट. जिस घर में आप रहते हैं मे बी योर ऑन, वो आपका अपना होगा, बट द स्ट्रीट इज नॉट योर. You share the street with other people. As a citizen of your village, town or city, you share that place with the other people in it. अगर आप सिटी में रहते हैं, विलेज में रहते हैं और टाउन में रहते हैं, आपको बहुत सी चीजें शेयर करनी होती हैं अदर सिटीजन्स के साथ, अदर पीपल्स के साथ, जो कि आपके नहीं होती. आपको सबको मिलकर वो शेयर करनी होती है और यूज करनी होती है. You share many things, many other things too. Sharing these things means that we must also share the responsibilities for them. Citizen involves people acting together to address issues and improve society. तो क्या होता है कि सिटीजनशिप में पीपल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, सब लोग मिलकर बैठते हैं, जो भी हम आपकी लोकेलिटी, जो आपके इलाके की, आपके टाउन की, कम्युनिटी के इश्यूज होते हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है, एड्रेस किए जाते हैं और उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करके आपकी सोसाइटी को इम्प्रूव किया जाता है. आपकी सोसाइटी में, आपके मुआशरे में जहां आप रह रहे हैं वहां कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वहां सब लोग मिलके बैठ के एड्रेस करते हैं उस प्रॉब्लम पे और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है. माय डियर स्टूडेंट्स, हियर आर सम थिंग्स वी शेयर विद अदर्स. कुछ चीजें और भी हैं जो हम सबके साथ शेयर करते हैं, जो हमारी अपनी नहीं होती बट हम सबको मिलके यूज करनी होती है, शेयर करनी होती है. स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. हॉस्पिटल्स में हम सब लोग जाते हैं, किसी एक का नहीं हॉस्पिटल कि वही वहां जाए, सब लोग शेयर करते हैं हॉस्पिटल्स. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब लोग मिलकर यूज करते हैं. म्यूजियम, रोड्स, कॉलेजेस, स्ट्रीट, पार्क्स में सब लोग मिलकर सब लोग जाते हैं, हमारी कम्युनिटी के सब लोग जाते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जो सबके घर में सब उसको शेयर कर रहे हैं. लाइब्रेरीज, फुटपाथ, क्लिनिक्स, शॉप्स, पोस्ट ऑफिस. वाटर हम सब लोग शेयर करते हैं. मार्केट्स, टेलीफोन्स, गैस स्टेशन, बैंक्स, पुलिस स्टेशन, the drains, the air we breathe, petrol station and airports. ये सारी चीजें जो हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. Some of these things are for all of us to use. For all of us to use, हम सब के लिए हैं, जो हम सब यूज करते हैं. They are called services. Yes. बेटा काइंडली सेटल करिए अपने हेडफोन्स. आई हैव टोल्ड यू अबाउट मैनी थिंग्स दैट वी शेयर विद अदर्स. मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम बहुत सी चीजें जो हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ करते हैं, बट उनमें से कुछ ऐसी चीजें होती है वो हम सब के लिए होती है. दे आर कॉल्ड सर्विसेज, जिसे हम सर्विसेज बोलते हैं. सम लाइक एयर आर फ्री. एयर तो फ्री होती है, कुछ सर्विसेज फ्री होती है, कुछ के लिए हमें पे करना होता है. जैसे एयर होती है, एयर के लिए एयर तो हमारे लिए फ्री है ना, हवा तो हमारे लिए फ्री है, तो उसके लिए तो हमें पे नहीं करना पड़ता ना. सर्विसेज कैन बी प्राइवेट और पब्लिक. सर्विसेज टू टाइप्स की होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक. प्राइवेट मीन्स दे आर बिलोंग टू समवन एंड पब्लिक मीन्स दे आर फॉर एवरीवन. प्राइवेट होती है कि जो सिर्फ किसी पर्सन से बिलोंग करती है, और पब्लिक जो होती है वो सबके लिए होती है. दे आर फॉर एवरीवन. प्राइवेट बिलोंग्स टू समवन एंड पब्लिक मीन्स दे आर फॉर एवरीवन. बेटा अपने हेडफोन सेटल करें. यस बेटा, कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिनको लेने के लिए हमें पे करना पड़ता है, हमें पैसे देने पड़ते हैं. सम पीपल आर पेड टू क्लीन द स्ट्रीट्स और टू रिपेयर द टेलीफोन लाइंस, टू फिक्स इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, टू डिलीवर मेल टू पीपल्स हाउसेस. हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिसिटी इशू होते हैं, तो हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिशियन को, वो आके उसको प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं और हम उनको पे करते हैं. हम अपनी स्ट्रीट को क्लीन करने के लिए स्ट्रीट क्लीनर्स को पे करते हैं. हम अपनी टेलीफोन लाइन को रिपेयर करवाने के लिए पे करते हैं, और हम
किसी को मेल सेंड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए हम लोगों के घर में पोस्ट करने के कुछ भी मेल करते हैं तो उसके लिए भी हमें पे करना पड़ता है। द पुलिस आर पेड टू प्रोटेक्ट अस एंड द फायर फाइटर्स आर पेड टू बी पुट आउट फायर्स। हाउ आर दे ऑल पेड? कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं जिनको हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होता है, उनको बुला के हमसे अपने सेटल करवाते हैं, प्रॉब्लम्स अपनी चीज को सेटल करवा देते हैं और उनको हम पे कर देते हैं ऑन द स्पॉट, उनको हम पे कर देते हैं। तो कुछ सर्विसेज ऐसे, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, बट हम उनको पे कैसे करते हैं? लाइक पुलिस हमारी केयर करती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। और फायर फाइटर्स क्या होते हैं, वो पुट आउट करते हैं फायर को, आग को बुझाते हैं, बट हम उनको पे कैसे करते हैं, उनको पे कैसे किया जाता है? एवरी पर्सन इन कम्युनिटी हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब हमारी कम्युनिटी में हम सब लोग क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। हम टैक्स पे करते हैं और हम वो टैक्स किसको देते हैं? गवर्नमेंट को, अपनी गवर्नमेंट को देते हैं। अ हाउस ओनर पेज अ हाउस टैक्स। जिसके पास अपना घर है वो अपने घर के टैक्स देता है। जिसके पास अपनी कार है, द कार ओनर पेज अ रोड टैक्स। वो रोड पे अपनी कार के वो रोड टैक्स देता है अपनी कार को यूज करने के लिए। एंड पीपल ऑल्सो पे इनकम टैक्स। और लोग इनकम टैक्स, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो इनकम टैक्स भी देते हैं। मनी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एवरीवन। तो वो जो सारी मनी वो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है टैक्स की सूरत में, वो गवर्नमेंट सर्विस देने वालों को प्रोवाइड भी करती है। मनी कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्सेस इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एवरीवन। जो हम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस टैक्स को कलेक्ट कर रही है और हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, हम सब के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ओके, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या होती है? माय डियर स्टूडेंट्स, वी कांट मेक ऑल द रूल्स, हम खुद से रूल्स नहीं बना सकते। सो वी हैव अ इलेक्शन। हमारे मुल्क में इलेक्शन होता है। वी वोट एंड चूज पीपल हु विल मेक द रूल्स फॉर अस। हम अपने वोट कास्ट करते हैं। वोट कास्ट करके हम उस पर्सन को हम चूज करते हैं जो हमारे लिए रूल्स बनाता है, हमारे लिए रूल्स बनाता है। एंड दीज पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट बनती है कि हम वोट अपना कास्ट करते हैं और वोट कास्ट करके हम अपने जिस पर्सन को हम वोट दे रहे हैं, हम उसको इलेक्ट करते हैं तो वो हमारे रूल बनाए और वो गवर्नमेंट बनाते हैं। द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे एंड व्हाट सर्विसेज टू प्रोवाइड। तो जो गवर्नमेंट होती है जिसको हम इलेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए ये डिसाइड करती है कि हमें टैक्स कैसे पे करना है और कितना टैक्स पे करना है और किस चीज पे टैक्स पे करना है, और वो हमें सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करेगी। तो गवर्नमेंट का काम टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स को यूज करना, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना, एंड दे गेट पीपल टू डू डिफरेंट जॉब्स फॉर द कम्युनिटी। और वो डिफरेंट पीपल्स को इलेक्ट करते हैं जो अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करते हैं, लाइक पुलिस, फायर फाइटर्स, रेस्क्यू पीपल्स। तो इस तरह की जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट पे करती है थ्रू और टैक्स। जो टैक्स हम उनको पे करते हैं, उस टैक्स से गवर्नमेंट उन लोगों को पे करती है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पुलिस हमारी केयर करती है, फायर फाइटर्स फायर को पुट आउट करते हैं, रेस्क्यू हमें प्रोटेक्ट करती है, इमरजेंसी में हमें फर्स्ट एड देती है। तो इन सब पर्सन्स को इनको कौन कर रहा है पे? गवर्नमेंट पे कर रही है थ्रू और टैक्सेस। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो हमारे लिए फ्री होती हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनके हमें पे करना होता है। लाइक वॉकिंग ऑन स्ट्रीट, अगर हमें गली में चल रहे हैं, स्ट्रीट में चल रहे हैं, हमें वॉकिंग, दैट विल बी फ्री, वो फ्री होगी, उस पर हमें पे नहीं करना पड़ेगा। स्टडिंग इन द स्कूल में हम पढ़ रहे हैं तो स्कूल में पढ़ने के लिए हमें पे करना होगा, हमें फीस ट्यूशन फीस सबमिट करवानी होगी, तो इट्स नॉट फ्री। बाइंग समवन फ्रॉम अ शॉप, किसी शॉप से हम कुछ खरीदते हैं
तो जब हम बाय करते हैं तो वी हैव टू पे फॉर इट, दैट वुड बी नॉट फ्री, वो फ्री नहीं होगा, हमें उसके लिए पे करना होगा। ब्रीदिंग फ्रेश एयर, हम ताज़ा हवा लेते हैं, हम वी इनहेल ऑक्सीजन, उसके लिए हमें पे नहीं करना होता, इट्स फ्री। यूजिंग अ बस और टैक्सी, अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी है, बस यूज करनी है, टैक्सी यूज करनी है, दैट वी हैव टू पे, तब हमें पे करना होता है, इट्स नॉट फ्री। यूजिंग वाटर टू वॉश और क्लॉथ्स, अपने क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए हम वाटर यूज करते हैं, तो क्या वो फ्री होगा? ये स्टूडेंट्स, जो वाटर हम यूज करते हैं क्या वो फ्री है? I'm waiting for your reply. Yes, it's not free. We have to pay for it. हमें तो इसके लिए पे करना होता है ना, ये फ्री नहीं होते। Seeing a doctor in hospital, हम डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल में, not free. Okay, drying clothes in the sun, is it free or not free? Yes, my dear students. Drying clothes in the sun, is it free or not free? It's free. तो फ्री है ना, हमें इसके लिए पे तो नहीं करना पड़ता ना। Okay, my dear students, page number 27 and 28, your homework, you have to solve page number 27 and 28. With the help of notes, वो नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो काइंडली क्या आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके मैसेज, आपको नोट्स प्रोवाइड किए आपको मिल रहे हैं, अवेलेबल हैं आपको? यस। तो बेटा आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने उन नोट्स की हेल्प से अपने वर्क पेजेस को सॉल्व करना है और क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक पे आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक पे राइट करनी है, नीट नोटबुक पे आप राइट करेंगे। व्हेन यू विल बैक, तो आपकी हम क्वेश्चन आंसर्स आपकी नोटबुक्स को चेक किया जाएगा। ओके। एक्टिविटी बी, पेज नंबर 27, फाइंड दीज वर्ड्स इन द ग्रिड, community, public, text, private, services and neighbors. You have to find out these words. You have to find out these words in this grid and then write sentences using 5 of the words from the list. Like, I live in Muslim community, I pay tax on land, services can be public or private. Use the public transport for traveling, I work in the private company, my neighbors are very kind. You have to make your own sentences by using these words that you have find out the grid. Do you know your neighbors? Describe some of them. What other buildings are there near your school? Find out. My dear students, आपको इस पैराग्राफ एक्टिविटी सी पेज नंबर 28 पे राइट करना है। क्या आप अपने नेबर्स के बारे में जानते हैं? उसमें से किसी एक पर्सन को आप अपने नेबर्स को आप डिस्क्राइब करेंगे और आपने ये भी हेल्प करना है कि आपके स्कूल के नज़दीक कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं। ओके। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ? लेक्चर इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अगर कुछ कंफ्यूजन है आपको, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। are going to start, so make strong preparation, good preparation for your assessment. Okay? Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.